Welcome to another video which is about Prime Minister Cares Fund. ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ Prime Minister Cares Fund is a scam, ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਆ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ why Prime Minister Cares Fund is so controversial। 25 ਮਾਰਚ 2020 ਦਾ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ, 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड रजिस्टर होंदा और 28 मार्च ਨੂੰ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं। वो ट्वीट च कहते हैं, मेरे प्यारे देशवासियों, दिस इज अपील फॉर डोनेशन और नीचे एक लिंक शेयर किया जाता pib.gov.in, एक सरकारी संस्था है द प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और वो पूरी डिटेल होंदी है कि तुसी PM केयर्स फंड च डोनेट करो, दिस इज द अकाउंट नंबर एंड ऑल द थिंग्स। मेयरली इन 3 डेज 27 मार्च ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ 31 ਮਾਰਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ PM ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3076 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਅਰਲੀ 52 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.27 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਚ ਬੋਲੇ ਤਾਂ 9700 ਕਰੋੜ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ। PM केयर्स फंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ, CSR ਇਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਜੋ ਦ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਿਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਟ ਸਮ ਮਨੀ। ਸੋ ਉਹ ਪੈਸਾ ਅਗਰ PM केयर फंड ਚ ਕੰਪਨੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CSR ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, प्लस जो फॉरेन कंट्रीज तो डोनेशन आएगी ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ अगर वो प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड ਦੇ ਵਿੱਚ अपना पैसा डोनेट ਕਰਦੇ ਆ। द मूवमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज कि ਇਹਦੇ ਚ डोनेट करो, जो सरमाएदार लोग ने या ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਕੁਝ ਪੈਸਾ डोनेट ਕਰਨ ਦੇ, कोरोना काल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ they started donating immense amount of money। अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, big corporates, L&T donated 150 crore, ITC donated 10 crore, Reliance donated 500 crores। इस तो इलावा अडानीज, टाटा देश दे अपनी देश दे मोरोवर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सी लाइक BHU, NCERT plus IITs and others, they also donated जिन्ना पैसा वो कर सकते सी, which goes in hundreds of crores। अपने देश दे जो PSUs या पब्लिक सैक्टर यूनिट्स उन्हां वालों 101 करोड़, 15 सरकारी बैंकों वालों 350 करोड़ एंड RBI वालों 7.5 करोड़ रुपया PM केयर्स फंड च डोनेट किया गया। गल इत्थे ही खत्म नहीं हुंदी, फर्दर मोर इंडियन रेलवेज, इंडियन आर्मी वालों 500 करोड़ डोनेट किया गया। इंडियन रेलवे दे जो कर्मचारी सी उन्हां वालों अपनी सैलरी डोनेशन दे विच PM केयर्स फंड नूं दित्ती गई। इस तो इलावा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उन्होंने अपने नोटिस निकाल के अपने नॉन गैजेटेड और गैजेटेड ऑफिसर्स या जिन्ने भी उत्थे वर्कर सी उन्होंने डिफरेंट दिनों की सैलरी विच डोनेट करने लई किया, लाइक 3 दिन की सैलरी फॉर गैजेटेड ऑफिसर्स, जो नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स सी उन्होंने 2 दिन की सैलरी लाइक दिस। सो सुप्रीम कोर्ट, RBI और देश के ऑलमोस्ट हर एक इंस्टीट्यूशन तो इस PM केयर्स फंड दे विच मोटा दान इकट्ठा हुंदा है। PM केयर्स फंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਬਟ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੋਲੰਟਰੀ ਯੈਟ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪਏਗੀ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਸਰਕੂਲਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਚੋਂ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ PM केयर्स फंड डोनेट करोगे। स्टाफ ने ऑब्जेक्ट किया और उस तो बाद इस नोटिस ਨੂੰ विड्रॉ कर लिया गया। इस तो इलावा कई डॉक्टर्स ਨੂੰ भी डॉक्टर्स दी ऑर्गेनाइजेशंस ਨੂੰ भी कहा गया कि ਤੁਸੀਂ डोनेट करोगे, बट डॉक्टर्स ने या होर कई लोगों ने इदां ਦੀਆਂ एग्जांपल्स है जिन्हां ने ऑब्जेक्ट किया कि ਤੁਸੀਂ वॉलंटरी भी कह रहे हो और मैंडेटरी भी कर रहे हो ਸਾਡੇ ਲਈ डोनेट करना, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੋਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਿਡਰॉ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲੇਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਪਲੇਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਮਾਉਂਟਡ ਅਪ ਟੂ
अप्रोक्सीमेटली लाइक 2100 करोड़ तक। इस तो इलावा इंटरनेशनल डोनेशंस भी आईਆਂ जो कंपनीज रशिया ਦੇ ਵਿੱਚ डिफेंस ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਐਂਡ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1.27 ਬਿਲੀਅਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾउ ਕਮਸ ਵਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਇਜ਼ ਸੋ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਸਮਝਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਟਾਈਪ ਆਫ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ कि इस प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड बारे कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि एदा सरकार दे नाल कोई लैन देन नहीं है और प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। सो इन्हां गल्लां तो कंट्रोवर्सी होर ज्यादा वध जांदी है क्योंकि अगर तुसी pmcaresfund.gov.in ते जाओ जो दी ऑफिशियल वेबसाइट है ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਪੋਰਟਲ ਮਿਲਿਆ that is gov.in। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ਕਿਉਂ? ਮੋਰ ਓਵਰ ਜੋ ਐਂਬਲਮ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2005 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਫॉर द ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬਲਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਐਂਬਲਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬਲਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ, ਈਵਨ ਜੋ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਬਲਮ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ gov.in ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਐਂਡ 3 ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, डिफेंस मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह एंड अमित शाह जी आर द मैंबर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड। इस वीडियो के शुरू च गल कीती कि प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड दे विच कुछ तरह दी एग्जैम्पशनस मिलदियां हैं जिवें कि टैक्स तो, CSR एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिहड़ियां फॉरेन डोनेशंस आंदियां हैं। सो एक तरह नाल जो वो फंड सीगे वो एग्जैम्पशनस सरकारी टैक्सां तो मिल गई, जो सरकार नूं पैसा आना सी वो एग्जैम्प्ट हो गया और एक तरह नाल सारा पैसा डाइवर्ट होके एक चैरिटेबल ट्रस्ट दे अकाउंट दे विच सारा चला गया। सो फंड्स दी डाइवर्जन लोकां नूं एक तरह नाल मिसलीड करना हो गया जदों नैशनल सिंबल्स आपां लगा के और government.in दे पोर्टल आपां लगा के लोकां तो डोनेशन दी अपील कर रहे हैं और उत्ते आपां ये नहीं दस रहे कि सिर्फ एक ट्रस्ट है। अगर एक प्राइवेट ट्रस्ट सी तो इस ट्रस्ट दे विच लोकां नूं डोनेशन देण दे लई नोटिफिकेशनस कड्डे गए कि तुसीं इहदे च डोनेट करनी है अपनी सैलरी। लोकां नूं बहुत बड़ी कैंपेन चला के बहुत बड़ियां सैलीब्रिटीज लाइक आशा भोसले एंड होर बहुत अपने स्पोर्ट्स दे नाल जुड़े हुए लोग एंड सैलीब्रिटीज ने अपील की। देश के कई पार्लीमेंटेरियंस वालों भी ये अपील करी गई लोगों की कोरोना की डबल डोज या लगवान तो बाद तुसी 500 रुपया 100 रुपया अगर पीएम केयर्स दे विच पाओगे तो देखो अपने को इन्ना पैसा पीएम केयर्स च इकट्ठा हो जाएगा। सिंगर आशा भोसले वालों कहा गया कि हर एक इंडियन नूं 100 रुपया पीएम केयर्स फंड डोनेट करना चाहिए। फर्दर मोर अगर पीएम केयर्स फंड एक चैरिटेबल ट्रस्ट है तो इहदे विच डोनेशंस पाउण दे लई नोटिफिकेशन तो कड्डे ही गए, प्लस कई सरकारी वैबसाइट्स के उत्ते भी एड चलाई गई जिहदे विच पीएम केयर्स फंड की एड आती सी कि तुसीं इत्थे क्लिक करो एंड डोनेट इनटू पीएम केयर्स फंड डायरैक्टली। पीएम केयर्स फंड के ऑडिट ते भी बहुत सवाल चक्के जाते हैं कि CAG वालों इहदा ऑडिट क्यों नहीं हुंदा, पर गल इत्थे खत्म हो जाती है कि जदों पीएम केयर्स फंड एक प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है तो इहदा सरकार दे सिर ते ट्रस्ट नहीं चल रही, सरकार वालों इनू पैसा कोई नहीं मिलता। सो CAG दे ऑडिट कराउण दी प्रोविजन मैनूं लगदा इत्थे
लागू नहीं होए। प्राइवेट ऑडिटर वालों ये ऑडिट तक की जाती है, बट ये ट्रांसपेरेंसी, ये एक्सपेंडिचर और कितनी डोनेशन इस चीज नू पब्लिक करके वैबसाइट ते नहीं पाया जाता। सो सवाल ये भी आता है कि प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड जो देश के विच आपातकालीन जो एमरजेंसी टाइप सिचुएशन आउण ते ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਦੈਨ ਯੈਸ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਜੋ 1948 ਤੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਫॉर ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਵ ਇਨ ਮੂਵ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਸੀ ਔਰ ਨਵਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ PMNRF ਸੀਗਾ, ਜੋ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ट्रांसपेरेंसी ओदी भी इन्नी ज्यादा नहीं सी और पीएम केयर्स फंड दी भी इन्नी ज्यादा नहीं है। बट पीएम नैशनल रिलीफ फंड जो पुराने वाला सी ओदा कितना खर्चा होया, किते किते स्पेंड होया, ओदी तुहानू वैबसाइट दे उत्ते PDF मिल जाणगे प्राइम मिनिस्टर नैशनल रिलीफ फंड दे विच। बट पीएम केयर्स दे विच हजे तक इदां दा कोई एक्सपेंडिचर दी डिटेल सिर्फ शुरू वाले कुछ महीनों दी है, उस तो बाद दी मौजूद नहीं है। उस तो इलावा ना तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड पुराने वाला और ना ही नए वाला प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड दोनों ही CAG तो ऑडिट नहीं किए जाते, बल्कि एक अलग ऑडिटर्स ने जो इन्होंने ऑडिट करते हैं। पुराने वाले प्राइम मिनिस्टर फंड दे विच सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का ही सोल अधिकार हुंदा सी, बट नए PM केयर्स फंड दे विच भी 3 मिनिस्टर शामिल ने प्राइम मिनिस्टर दे नाल एक्स्ट्रा, एंड प्राइम मिनिस्टर नैशनल रिलीफ फंड भी एक ट्रस्ट है और प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड भी एक ट्रस्ट है। सिर्फ और सिर्फ जो ओनली डिफरेंस दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं वो ये है कि वो नेहरू जी ने बनाई सी और ये मोदी जी ने बनाई है। प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड दे विच 5500 करोड़ का हिसाब किताब दिता गया है। लाइक नंबर 1 उन्होंने कहा कि 50,000 वेंटिलेटर्स सप्लाई किए गए, जिहदे ते 3100 करोड़ का एक्सपेंडिचर होया, एंड वो वेंटिलेटर्स बाद अलग गल है कि हॉस्पिटल्स दे विच जाके चले नहीं या क्वालिटी टेस्ट दे विच फेल होए। इस तो इलावा 1000 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स जो आप मंजर देखिया सी लॉकडाउन दे विच, माइग्रेंट वर्कर्स एक स्टेट तो दूजी स्टेट अपनी मदर स्टेट च मूव हो रहे सीगे, सड़कों ते रुलदे सी, उन्हां दी वेलफेयर दे लई 1000 करोड़ स्पेंड होया। इस तो इलावा 100 करोड़ रुपीस कोरोना वायरस दी वैक्सीनेशन डेवलप करने दे लई प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड चों खर्चा गया। सो नो ट्रांसपेरेंसी, वॉलंटरी येट मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन, नैशनल सिंबल्स दा मिसयूज करना, नैशनल पोर्टल सरकारी पोर्टल नु यूज करके लोगों को मिसलीड करने की कोशिश करना, और इस तो इलावा नो जवाबदेही ऑन एक्सपेंडिचर। ये रीजंस प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड नु थोड़ा कंट्रोवर्शियल एंड स्कैम बनाउंदे ने, क्योंकि सरकारी अदारियां नु यूज करके सरकारी मशीनरी, सरकारी सिंबल्स एंड अपने प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स दी अहुदियां नु और छवि नु यूज करके पैसा इकट्ठा किया गया। उस पैसे नु एक चैरिटेबल ट्रस्ट दे विच रखा गया जो कि RTI दी इंफॉर्मेशन एक्ट दे अंदर भी शामिल नहीं हुंदा, उहदे बारे इंफॉर्मेशन नहीं ली जा सकती। PM केयर्स फंड दी डेफिनेशन ये दी जाती है कि प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन फंड, बट इत्थे इस चीज की क्लैरिटी नहीं है कि पहला प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड का नाम रखा गया और उस तो बाद उहदी फुल फॉर्म बनाई गई, कि पहला फुल फॉर्म बनाई गई उस तो बाद PM केयर्स किया गया। इस वीडियो में मैं 2 सवालों ना एंड करूंगी कि अपने देश का कोई भी हाई एंड फंक्शनरी लाइक प्राइम मिनिस्टर, अपने मिनिस्टर्स जेडे टॉप 3 मिनिस्ट्रीज है इस टाइम ते, कि वो अपनी छवि नु यूज करके कोई ऐदां दा प्राइवेट अदारा बना सकते हैं जिहदे विच लोकां दी सद्भावना दे नाल इकट्ठा किया गया पैसा या उन्हां दियां अपने देश प्रति वो फीलिंग्स, ऐदां दी ऑर्गेनाइजेशन कि वो बना सकते हैं जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन दे परछावें दे हेठ ना होवे। दूसरी गल यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का यह मॉडल PM केयर्स फंड वाला मॉडल अगर हर सूबे का चीफ मिनिस्टर भी एक ऐदा ही अपनी चैरिटेबल ट्रस्ट बना ले और पुराने जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है उन्होंने छड्ड दे, तो फिर विकास की गल कित्थे होगी? फिर किद्दां आपां ट्रांसपेरेंसी और भरोसा जता सकते हैं और कायम रख सकते हैं सरकार के उत्ते। थैंक यू।